Hello student, good morning. Class 10. Class 10. Today we are going to discuss, otherwise I am going to teach you trigonometric ratio. In a previous episode I talked about the introduction of trigonometry in class 10. Okay. And today the chapter 8, episode number 2 today. First of all, trigonometric ratio. What is the concept of trigonometric ratio? You already knew about that ratio. Ratio means fractions. Okay, fraction. Suppose that a upon b, for example, 1 upon 2. Clear? This is the fraction concept, ratio. And when include trigonometric, so it is called the trigonometric ratio. Clear? So first of all, here I convince about trigonometric ratio, that is trigonometric addition sin theta equals to p upon h. P upon h, this is the ratio form. Okay, and this is when any terms contained in the form of fraction, so it is called a ratio, and we convert into the ratio when any numbers contained in the form of fraction, so I will convert. Okay, otherwise I can convert in the ratio form. In this I will write in the fraction in this type of p is to h. Okay, so that is यानी कोई भी फ्रैक्शन में रहेगा उसको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी फ्रैक्शन को, इसलिए फ्रैक्शन को हम रेशियो कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ देखिए रेशियो फॉर्म है और ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इंक्लूड हुआ, तो ये मिला कि क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हुआ. तो आज मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला बताता हूँ. ठीक है, इसी फॉर्मूला के साथ हम लोग आगे चलेंगे. ट्रिक का भी यूज होगा यहाँ पर, इस एक्सरसाइज का भरपूर फॉर्मूला का यूज होगा. ये जिस जो फॉर्मूला लिखा है उसी फॉर्मूला का यूज करते हुए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके, क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आर्यभट्ट ने हमारा टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए थे. ठीक है, ये हमारा sin थीटा एक तरह का क्या हो गया, आपका फंक्शन है, लेकिन कैसा फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया. ओके, तो हम लोग 6 आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए थे अकॉर्डिंग टू इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट. ओके, और इसका डिस्कवरी कौन थे आपका, देखिए हिपा, पहले मैं बता चुका हूं, हिपाचस. ये वर्ड का आपका डिस्कवरी वाला हो गया, डिस्कवरी ऑफ साइंटिस्ट नेम. ओके, इन ट्रिग्नोमेट्रिक he discovered trigonometric. Okay, introduction of trigonometric. Clear? But according to Indian mathematician, Aryabhatta discovered trigonometry. Clear? And Aryabhatta appeared 6 type of trigonometric function. First of all, sine. Second is cosine. Third is tangent. Fourth is cosine. Next, sixth is 5 is second, and last finally cotangent. Okay, there are 6 types of there are 6 number of trigonometric function, but I already convinced you that there are 4 types of trigonometric: chord trigonometric, okay, plane trigonometric, spherical trigonometric, and analytic trigonometric. Clear? But here I am going to discuss there are 6 number of trigonometric functions, and they gave by the help of Indian mathematician Aryabhatta. Okay, sine, this is the full name: sine, cosine, tangent, this is cosine, and also repetition, cosecant here, no cosine. Tangent, after to tangent, cosecant. Okay, clear? Sine, cosine, tangent, cosecant, secant, cotangent. देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक में आपका कौन सा ट्राइंगल का यूज हुआ था, राइट एंगल ट्राइंगल. तो राइट एंगल ट्राइंगल का हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल plot the figure
right angle triangle. This is right angle triangle. Clear? This is A name BE and this is C. Okay. This is perpendicular. This is base and this is hypotenuse in the simple form. Okay. When the angle represent in this position, that is bottom position. Okay. Theta. I let theta this angle measurement. Clear? जब इस एंगल को मेजरमेंट करते हैं तो इसका अपोजिट साइड ये हो रहा है AB, तो AB क्या हो गया परपेंडिकुलर यानी अपोजिट साइड. क्लियर? और थीटा का जो नियरेस्ट है हमारा साइड ये नियरेस्ट हो गया, इसको हम लोग बेस कहते हैं. दिस इज कॉल्ड अ बेस एंड एज वेल एज इट इज आल्सो कॉल्ड एडजेसेंट साइड. क्लियर? इसको एडजेसेंट साइड भी कहते हैं हम लोग और बेस भी कहते हैं. जो थीटा के नियरेस्ट है और थीटा का जो अपोजिट होता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर अदरवाइज अपोजिट साइड. ओके क्लियर? तो अब हम लोग इसी ट्रायंगल का यूज करते हुए क्या करते हैं, देखिए फुल नेम जो दिया ना फुल को शॉर्ट करना पड़ेगा. ये हमारा जो सफिक्स पोजीशन ई दिख रहा है. ओके और इसका सफिक्स पोजीशन आई एन ई होगा. क्लियर? नेक्स्ट इज अब टेंजेंट का आपका सफिक्स पोजीशन जी ई एन टी, इसको हम लोग क्या रिमूव करेंगे, दैट इज एलिमिनेटेड करेंगे. कोसेकेंट में हम लोग क्या करते हैं, देखिए ए एन टी इसको रिमूव करते हैं. क्लियर? आफ्टरवर्ड्स सेकेंड का ए एन टी यहां पर भी आपका सफिक्स पोजीशन है और टेंजेंट कॉटेंजेंट दैट इज यहां से ए एन जी एन टी आपका क्या है सफिक्स पोजीशन. सफिक्स मतलब जानते हैं आप लोग, हिंदी में तो पढ़ते ही बोलते हैं. एक पढ़ते होते हैं, एक उपसर्ग होता है. ठीक है? जो बाद में ऐड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको सफिक्स पोजीशन बोलते हैं. क्लियर? तो बाद में ऐड होने वाला कि बाद में जो आफ्टर दैट लास्ट पोजीशन में जो ऐड हो रहा है इन द एंडिंग पोजीशन, इस सब को हम लोग रिमूव करेंगे और उसके रिप्लेस में हम लोग क्या यूज करते हैं, थीटा करते हैं. ठीक है? तो थीटा हो गया. या तो आप थीटा को मेजरमेंट नहीं करना चाहते, डायरेक्ट नेमिंग का आधार पर चलना चाहते हैं, तो देखिए सी है तो एंगल सी आप लोग समझ सकते हैं. यहाँ पे एंगल सी और एंगल सी को आप यहाँ पे इक्वेट कर सकते हैं इस सफिक्स को आपको रिमूव करके. क्लियर? तो अब हम लोग इस सफिक्स जितने सारे सफिक्स आप लोग को आइडिया दिया मैंने, ठीक है, इस सारे सफिक्स को रिमूव कर देंगे. ठीक है? और उसके रिप्लेस में हम लोग क्या इक्वेट करेंगे, थीटा इन द बॉटम पोजीशन. ओके चलिए लेट्स सी. मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोग को पाइथागोरस फार्मूला समझा चुके हैं. ठीक है? आई ऑलरेडी कन्विंस्ड अबाउट पाइथागोरस फार्मूला. There are three types. First of all, only one type of formula as a Pythagoras. Okay, Pythagoras. I repeat. Okay, Pythagoras. This formula is very important for this exercise. Every time use in this type of formula. Pythagoras theorem, otherwise formula. In a triangle chapter. Okay. You will study triangle chapter and last exercise Pythagoras topic. Okay, clear? So I convince only Pythagoras formula in this exercise. Pythagoras. Suppose that this is hypotenuse and hypotenuse is the longest side. Okay, in the right angle triangle. Clear? After that next side comes perpendicular and finally last side comes base. Clear? First of all, hypotenuse equals to perpendicular square, hypotenuse square equals to perpendicular square plus base square. This is the main formula of the Pythagoras formula, otherwise Pythagoras theorem. But if perpendicular and base has given, but we have to calculate the value of hypotenuse, then I will use, otherwise you can use this type of formula. Suppose that hypotenuse has given, perpendicular has given, but b has unknown value. That is, we have to calculate the value of b. So what will you do? Then you can the use of formula, that is b equals to b square equals to h square minus p square.
Afterwards, we have to calculate the value of p. That is p square equals to h square minus b square. Okay. So let's say b square. Suppose you have to calculate the value of only p. That is p equals to this square convert into the root form. Root under h square minus b square. Okay. And you want to calculate the value of only b. That is next is b equals to root under h square minus p square. Clear? Afterward, only you want to find the value of only h, that is h equals to root under p square plus b square. These are Pythagoras formula. Main formula is h square equals to p square plus b square. But after that you have to find the value of p, then you can use root under h square minus b square. You want to find the value of b, then you can use the formula b equals to root under h square minus p square. Clear? These are Pythagoras formula. Okay. For calculating the unknown sides, then after you can use this type of formula. Clear? After that, main trigonometric ratio formula. Okay. Now we are going to convince about trigonometric ratio formula. Clear? Suppose that sin theta, first is sin theta, next is cos theta, next is tan theta, next is cosec theta, next is sec theta, and finally cot theta. Okay. This chapter I already convinced you that this chapter will be very useful chapter, very important chapter. From standard 10 up to 12 as well as competition classes. Suppose that GMAT advanced, okay, in the engineer area, as well as general competition, SSC railway ranking. Clear? So this chapter will be very important. So please you concentrate about this chapter by carefully. Okay, understand? Next, sin theta. The formula of sin theta: cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta, cot theta. Okay. Sin theta equals to p upon h. That is perpendicular upon hypotenuse. Cos theta b upon h, that is base upon hypotenuse. Next, tan theta p upon b, perpendicular upon base. Next is cosec theta, na? Cosec theta, that is the reciprocal of sin theta equals to cosec theta. The reciprocal of cos theta equals to sec theta. The reciprocal of tan theta equals to cot theta. Clear? Okay. These are reciprocals formula. Reciprocal just opposite. Suppose that your head, okay, the reciprocal of head, that is our leg. Okay, clear? Leg up and down of head. When you turn in your body parts. Clear? So head will go in the down position and your leg will go up position. These are called reciprocal concept. Clear? So suppose that sin theta the reciprocal of cosec theta, and the formula h by p. Next, sec theta, that is h by b. Afterwards, finally, the formula of cot theta, that is b upon p. These are formula of trigonometric ratio. Clear? Afterwards, now I will use trig formula. Okay, tricky. In this sixth number of trigonometric functions, I will use tricky, and I will convince
about four types of tricks. Okay, first trick I will use, and all the teachers always use. Okay, in this first type of trick formula, and second also. Okay, suppose that first is Pandit Badri Prasad Hari Hari Bol. Pandit Badri Prasad Bol हरी हरी, ये हो गया। देखिए ऐसा ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, और बोला जा रहा है कि पंडित बद्री प्रसाद बोल हर हर बोल हर हर, ऐसा उल्टा है, ठीक है, अपोजिट। तो इस तरह से एक फॉर्मूला आता है, ट्रिक में आता है। तो हमको नहीं लगता ये ट्रिक से उतना ज्यादा पॉसिबल है, कारगर है, ठीक है। तो सेकंड ट्रिक आते हैं हम लोग, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ओके, अगेन, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, एक ट्रिक ये भी आ जाता है। इसी के जैसे रेसिपी आपका डिनोमिनेटर देखिए, हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान बेकार पड़ा, या भूखा प्यासे बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये हो गया सेकंड ट्रिक। अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड ट्रिक। थर्ड में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होगा थर्ड एंड फोर्थ वाला। तो हमारे पास 4 टाइप ऑफ ट्रिक्स है, जो कि मैं 2 ट्रिक्स तो आप लोग हट के बता रहा हूं, ठीक है, बाकी 2 तो आप लोग सुनते होंगे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट ट्रिक में आते हैं, क्या हमारा बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है ये। तो पापा हेलो बेटा हेलो, पापा बोलो हेलो पापा, हेलो बेटा बोलो पापा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक, ओके। And both the numerator and denominator comes in this type of tricks as together, okay? तो ये दोनों जो हमारा जो पापा हेलो बेटा हेलो बोला जा रहा है, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक साथ वर्क कर रहा है, ठीक है। इससे पहले जो 2 ट्रिक्स मैंने बताया, उसमें आपका देखिए सेपरेटली वर्क कर रहा था, न्यूमरेटर सेपरेटली चल रहा था और डिनोमिनेटर भी सेपरेटली हो रहा है। तो that type of the tricks will not importance, okay? But this is the third type of the trick will be very important according to your concept, according to your minds, okay? तो पापा हेलो बेटा हेलो, पापा बोलो हेलो पापा, हेलो बेटा बोलो पापा, ओके, क्लियर। तो ये हो गया थर्ड नंबर ऑफ ट्रिक। अब लास्ट आते हैं ट्रिक्स में, ठीक है। लास्ट में तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। देखिए मैंने इस थर्ड ट्रिक में बताया आप लोग, पापा हेलो बेटा हेलो, पापा बोलो हेलो पापा, हेलो बेटा बोलो पापा, ठीक है। तो इसमें हमको क्या दिख रहा है, हम लोग को थोड़ा नोटिस कीजिए आप लोग कि इसमें क्या एक चीज दिख रहा है कि कुछ छूट रहा है भी। सिर्फ आपका देखिए राइट साइड में जो आपका p बाई एच, b बाई एच, p बाई p, h बाई p, h बाई b, b बाई p, सिर्फ यही चीज आ रहा है राइट साइड का। और लेफ्ट साइड का जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं जैसा है, उस तरह से आपको छूट रहा है। तो आपको कोई चीज छूटना नहीं चाहिए। एक ऐसा ट्रिक बताया जाए जो कि आपका पूरा का पूरा टोटल चीज आना चाहिए ना। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओनली 3 चीज को लर्न करना पड़ेगा। देखिए ये ट्रिपल कॉन्सेप्ट यहां से यहां तक, दैट इज साइन कॉस और टैन, ये 3 चीज। आप लोग ये 3 कॉन्सेप्ट याद कर लेते हैं तो बाकी तो रेसिप्रोकल है। साइन का रेसिप्रोकल cosec थीटा, the reciprocal of cos theta that is sec theta, the reciprocal of tan theta that is cot theta, ठीक है। तो आप लोग sin cos tan theta लर्न हो जाता है तो बाकी सब तो लर्न हो जाएगा, क्लियर। तो देखिए यहां से कॉन्सेप्ट में आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये तीनों के लिए ट्रिक मैं बना रहा हूं। तो ये तीनों में क्या होगा, तो टोटली आएगा, ये तीनों में से टोटली साइन भी आएगा, p बाई एच भी आएगा, cos थीटा b बाई एच होगा, tan थीटा p बाई b। यानी हमारे स्टूडेंट का एक क्वेश्चन है कि सर एक ऐसा ट्रिक बताया जाए कि जो आपका टोटली आए, ठीक है, मतलब 3 टर्म्स में, बाकी तो रेसिप्रोकल है, ओके। तो देखिए सुनिए, लिसन, फर्स्ट ऑफ लिसन, साइन थीटा दैट इज, देखिए एस वर्ड से जो स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, सम पीपल हैव, ओके, सम पीपल हैव, कॉस है यहां पर, तो यहां से क्या होगा, कर्ली ब्राउन हेयर, HAIR हेयर, मतलब ब्राउन कलर का हेयर, जबकि ब्राउन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट
tightly, T for tightly pulled, P for pulled back, B for back. That is the answer हो गया. Some people have curly brown hair tightly pulled back. Okay, this is most important. Okay, and all totally trigonometric function and P by H, B by H, P by B. Both come in this type of tricks. Okay, तो आप लोग ये ट्रिक याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट. बाकी आप लोग अकॉर्डिंग टू यू जो आप लोग अच्छा लगता है, ठीक है. तो ये तीन याद हो जाता है तो बाकी याद हो जाएगा. मेरा एक कॉन्सेप्ट और आता है, देखिए मैं सभी को मर्ज करके एक चीज और बता रहा हूं. तो हर कंडीशन में आप लोगों को समझा दे रहा हूं कि इस फॉर्मूला को याद कैसे करना है और ऑलवेज याद रखिए. तो उसी के बेसिस पर मैं सारा ट्रिक का यूज कर रहा हूं, ठीक है, ताकि आप लोग किसी भी तरह से लर्न हो जाए, कोई भी चीज छूटा नहीं. तो देखिए एक ट्रिक यहां से और बता रहा हूं कॉन्सेप्ट में, जो ट्रिक नहीं ज्यादातर कॉन्सेप्ट ही यूज होगा. P by H, B by H, P by B, ये एक चीज हो गया, ठीक है. देखिए यहां से लुक एट द बोर्ड. ओके, तो देखिए P by H that is sin थीटा हो गया, B by H that is cos थीटा, P by B that is tan थीटा. अब इसी के रेसिप्रोकल sin थीटा क्या होगा जी, cosec थीटा. तो cosec थीटा का क्या होगा, h by p. ओके, अब cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो गया, sec थीटा. दैट इज sec थीटा का वैल्यू क्या होगा, h by b हो गया. एंड tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा. अब cot थीटा का आपका फार्मूला क्या हो गया, b by p. तो देखिए एक ग्रुप में हम लिख दिए ताकि और इजीली लर्न हो आप लोग से. तो sin थीटा p by h, cos थीटा b by h, tan थीटा p by b, और cosec थीटा h by p, sec थीटा h by b, cot थीटा b by p. ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे भी लर्न हो जाएगा आप लोगों को आराम से इजीली. तो मैं सारा टाइप का कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दिया इस एक्सरसाइज में, ठीक है. अब मैं स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन, ठीक है. अब इसमें इतना ही है, इतना ही फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है, क्लियर कर लीजिए. अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स से बहुत सारे स्टूडेंट्स सुनते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड है. हमको नहीं लगता है ट्रिग्नोमेट्री का, स्टूडेंट के अनुसार हम बोल रहे हैं. आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री उतना हार्ड मत लीजिए, इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है. सही कॉन्सेप्ट के साथ, सही अंडरस्टैंडिंग के साथ क्वेश्चन समझिए, फॉर्मूला माइंड में सेट रखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझिए, क्या दिया हुआ, क्या फाइंड आउट करना, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता चल गया, ठीक है. तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करना आप लोग के लिए हो जाएगा, इजी हो जाएगा. ओके, तो ये सारा हमारा कॉन्सेप्ट में था. देखिए सही से चैप्टर को पढ़िए, क्योंकि 11 में आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ना है प्योर साइंस में, मैथमेटिक्स में, जो 10 से 12 एक्सरसाइज लगभग है, ठीक है. यहाँ तो आप लोग 4 एक्सरसाइज पढ़िएगा, क्लास 11 में तो 10 से 12 है. एज वेल एज क्लास 12 में भी आपका यूज होने वाला, भरपूर यूज है ये, इसलिए इसको पीछे मत छोड़िए. इस चैप्टर को आप क्या है, इस चैप्टर को आप लोग इतना आसान मत छोड़ दिए, मतलब ये चैप्टर हार्ड लेके छोड़िए मत दिए. जिनका टारगेट आगे प्योर साइंस लेना है, मैथमेटिक्स रखना है, तो उनके लिए आपका ये चैप्टर को ध्यान देना पड़ेगा, क्यों, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर ये, ठीक है. और जिनको नहीं लेना मैथमेटिक्स, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स क्लास 10 में तो आप लोग जानते हैं स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स बेसिक मैथमेटिक्स है, ठीक है. तो ये ऑलरेडी आप लोग समझ चुके हैं स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स बेसिक मैथमेटिक्स क्या है. तो जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स रखना चाहते हैं वो प्योर साइंस आगे मिलेगा उनको, ठीक है. और जो बेसिक मैथमेटिक्स रखना चाहते हैं उनको पॉसिबल नहीं है आपका 11th में प्योर साइंस मिलना. ओके, क्लियर, साइंस पेपर ही मिलना मुझे. तो प्योर साइंस का बात सबसे इंपॉर्टेंट है. प्योर साइंस यानी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पीसीएम प्योर साइंस बोला जाता है, वो मिलेगा तब जब स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स रहेगा तब. नहीं तो आप पीसीबी में जा सकते, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स नहीं रखते तो, ठीक है. तो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स जो रख रहे हैं उसके लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, क्योंकि 11 में बहुत पढ़ना, 12 में पढ़ना, जीमेंस में आपका रहेगा, इंजीनियर एरियाज में, ठीक है, सेक्टर में आपको. उसके बाद जनरल कंपटीशन है, जिस एरिया में जाना चाहते हैं चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. एडवांस मैथमेटिक्स में पूछता है. चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन. ओके, हाउ टू सॉल्व of first type questions. Okay, and with the help of use of basic concept and formula of trigonometric ratio. Okay, now start to solve in this given question. Clear?
and the question state that find the remaining trigonometric ratio of the following question। देखिए इसमें क्वेश्चन दिया है इतना, मैं इसमें से दो तीन क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है, बाकी आप लोग तो कर लीजिएगा। तो इसमें से टोटल आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितना हुआ आपका 6 हुआ, जिसमें से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक का दिया हुआ वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो बाकी 5 है, यानी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो 5 का फाइंड आउट करना। तो इसके लिए हम लोगों को तो पाइथागोरस फार्मूला लगाने पड़ेगा। देखिए लेट्स से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। नाउ सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन देखिए ए मेजरमेंट कर दिया, ए कर सकते हैं, थीटा कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, ए मेजरमेंट क्या, तो √3/2 हो गया ये इस तरह से। अब देखिए हम लोग एक चीज करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, देखिए ट्रायंगल बना देते हैं। चलिए इसको इस बार ए लेट करते बी, और ये क्या हो गया सी हो गया। तो ए मेजरमेंट क्या गया ए, ओके। तो उसके आधार पर इसका अपोजिट कौन हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये तो हाइपोटेन्यूज फिक्स रहता है, कभी चेंज नहीं होता है, और ये इसके नियरेस्ट हो गया बेस। क्लियर। तो अब देखते हैं हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू दिया इतना, यानी साइन थीटा समझते हैं, साइन थीटा दैट इज पापा हेलो होता है ना, या सम पीपल हैव, ये भी बोल सकते हैं ट्रिक में। ये फॉर्मूला होता है P/H। P का वैल्यू गिवन है, H का वैल्यू गिवन है, किसका वैल्यू गिवन है, ये B का वैल्यू नहीं है, तो B का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो B का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ B क्वेश्चन मार्क, ओके। सो वी हैव टू यूज द फॉर्मूला, ओके, पाइथागोरस फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ B। तो B इक्वल्स टू √h whole the power square minus P whole the power square। root under the value of h has given, that is 2, equating the value of h in the place of h, and I equated the value of h in the position of 2। 2 square minus the value of P, that is √3 whole the power square, this equals to 2 square, that is 4, minus √3 square, that is 3। clear। And now subtract each other, that is 1, and then square root of 1, that is 1। the value of 1 B equals to 1 we got, okay। देखिए B का वैल्यू तो निकल गया, अब क्या करना है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक का वैल्यू निकालना है। साइन का दिया हुआ तो बाकी निकाल लीजिए आप लोग। तो किसका निकालना है, cos A पहले निकाल देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, B/H, बेटा हेलो, या कर्ली ब्राउन हियर ना। तो B का वैल्यू 1 हो गया, H का वैल्यू 2 हो गया, cos के बाद tan A हो गया, ठीक है। तो tan A का वैल्यू फॉर्मूला क्या हो गया आपका, P/B, पापा बोलो, आपका टाइटली पुल्ड बैक। तो यहां से क्या हो गया होगा, P का वैल्यू क्या दिया हुआ जी, P का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ, P का वैल्यू आपका √3 है, द वैल्यू ऑफ B दैट इज 1। अब आता है cosec थीटा, cosec A, cosec दैट इज हेलो पापा, हेलो पापा, तो हेलो यानी h का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ h दैट इज 2, द वैल्यू ऑफ P दैट इज √3, एंड नेक्स्ट sec A दैट इज होता है क्या, हेलो बेटा, h/P, तो वैल्यू ऑफ h दैट इज 2, वैल्यू ऑफ B दैट इज 1। फाइनली cot थीटा यानी cot A, B/P, बोलो पापा, B/P, द वैल्यू ऑफ B दैट इज 1, द वैल्यू ऑफ P दैट इज √3। कंप्लीटेड फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। पहले आप लोग कंपेयर करना पड़ेगा, जो वैल्यू दिया है उसको कंपेयर करना है फॉर्मूला के साथ, ठीक है। क्या दिया हुआ, तो आपको परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज, बेस, तीनों में से क्या दिया हुआ। तो दो क्वांटिटी टर्म्स दिया हुआ है, एक को फाइंड आउट करना पड़ेगा। फाइंड आउट करने के लिए आप पाइथागोरस फार्मूला यूज कर सकते हैं। ओके क्लियर। तो देखिए इस तरह से बाकी सब भी निकाल सकते हैं, tan A, cot थीटा वगैरह सबका फाइंड आउट। cot थीटा दिया हुआ तो उसको देखिए थोड़ा समझते हैं हम लोग। cot थीटा खाली हिंट करता हूं, बाकी आप लोग से बन जाएगा। cot थीटा इक्वल्स टू √3। देखिए डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है, फ्रैक्शन में तो दिखाना पड़ेगा ना, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 हिडन है,
आप लोग ये समझते हैं? तो अब क्या हो गया, cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो पापा होता है ना, बोलो पापा, बी बाई पी cot थीटा का फॉर्मूला होता है। b का वैल्यू गिवन है और p का वैल्यू भी गिवन है, ठीक है। h का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, बाकी जो है cot थीटा को छोड़कर बाकी सब वैल्यू निकाल लीजिए आप लोग, क्लियर। अब चलिए इसी तरह आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में। तो आप लोग थोड़ा प्रॉब्लम होगा cosec थीटा का, cosec थीटा का दिया हुआ कितना √10, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, cosec थीटा इक्वल्स टू √10 है, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं तो 1 ही देना है, ठीक है, यहाँ पर भी कुछ नहीं तो 1 ही देना है। जैसे ये समझिए तैसे ये भी हो जाएगा। अब cosec थीटा दिया हुआ है √10/1, cosec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी, h/p यानी हेलो पापा। तो h और p का वैल्यू दिया हुआ, b का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, बाकी cosec थीटा को छोड़कर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच रहा है उसका वैल्यू निकाल दीजिए फॉर्मूला इक्वेट करके। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। आज मैं इस एपिसोड को यहीं कंप्लीट करता हूं, ठीक है। अगले एपिसोड में मैं आऊंगा तो क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, सॉल्व भी करूंगा, ठीक है। इसी के साथ एपिसोड कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, ओवर।